बाकी सब लड़कों के टीम इधर ही बैठे The best known name is Jiten Biswas. He has been earlier involved in an NDPS case and in an extortion case also, and a huge recovery of around 269 grams of heroin with a market value of around 53 lakh rupees has been recovered from him and his associate. Furthermore, different raids were conducted at his residences and we managed to recover 6.4 lakhs of hard Indian currency, 569 yuan Chinese currency, a laptop, many mobile phones, an i20 car, a currency counting machine and a DVR. Further investigation is going on regarding various aspects vis-a-vis the Chinese currency that we found, the hard cash, the amount of hard cash because it is too much, from where did he get it, the source of contraband. These all points will be covered in the investigation. We have both the accused with us for 6 days now. 6 days police custody has been given. And with this effort, Jiten Biswas and his associate Uttam Nath, with this effort, the rest of these two people, a major axis of heroin transmission from Assam to Arunachal will be controlled. That is our intent and that is our hope, that a major axis coming from Vishwanath, Lakhimpur, Guwahati and going to Papumpare, Upia, Zero, Sepa, this axis, mostly the contraband that was going from this axis will now be controlled. And this thing was majorly done because a lot of hard work had been put in by all our officers from the SIT for the past 2.5 weeks. SIT has always tried to work in the field of drug menace, so as to, because we feel that this is one of the greatest evils and this is one of the greatest challenges that the citizenry of Arunachal Pradesh is facing right now. In the past 1 year, we've had different cases, we made different seizures amounting to, I think we've had 3 cases in which we had around 400 grams of heroin that was recovered in total, and then we've arrested more than 12 people. We've recovered hard cash in those cases also. But this is one of the greatest, one of the biggest achievements and one of the biggest seizures to be ever made by the police in the state. And we are very sure that after this we will continue going forward in this direction, and we will try to bring out all the sources and all the places where these the middlemen also reside. We will also trying to bring them out also, and we will make more arrests in this case in the future. ये लोग, इनका बेसिक जो प्रेमाइस है वो ये है कि असम में ही डिफरेंट जगहों पे ये लोग रहते हैं, वहीं से ये लोग ऑपरेट करते हैं, इनके जो रिसोर्सेज हैं उनको यूज़ करते हैं अरुणाचल प्रदेश में कॉन्ट्राबैंड इंट्रोड्यूस करने के लिए. लेकिन जब भी कोई बड़ा अमाउंट कॉन्ट्राबैंड का ट्रांसफ़र करना होता है तो जो किंग पिन है वो खुद मूव करता है, बिकॉज ही डजंट ट्रस्ट एनीवन एज सच. तो क्योंकि काफ़ी ज़्यादा क्वांटिटी, तभी किंग पिन असम से अरुणाचल में मूव किया और तभी हम इसको पकड़ पाए. सर 2-3 महीना पहले में भी आप लोग ट्राई किया था, अरेस्ट नहीं हुआ था, क्या सही है? जितेन के लिए नहीं हम ट्राई किए थे, जिसके लिए हम ट्राई किए थे वो अरेस्ट हो चुका है, वो एक डिफरेंट केस है. जितेन की इन्फॉर्मेशन आनी काफ़ी रेयर थी, इसलिए क्योंकि आप देख ही सकते हैं इतने मोबाइल फ़ोन इसके पास रिकवर्ड हुए हैं, तो कोई भी एक नंबर या एक कोई मोबाइल फ़ोन ये जनरली अपने पास रखता नहीं है. ही कीप्स शिफ्टिंग सिम्स, ही कीप शिफ्टिंग मोबाइल फ़ोन्स डिवाइसेस ऑल्सो. तो जितेन का जो हमारे पास इन्फॉर्मेशन है वो लास्ट 2-2.5 हफ्ते से ही हमारे पास अच्छी तरह आने लगा और उसके बाद हमने इस पर डेवलप किया. सर कल तो अरेस्ट हुआ हुआ, हमको नहीं लगता है कि अभी तक इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट हुआ हुआ. सर क्यों ऐसा हम लोगों को लगता है कि यही नहीं है, काफ़ी लोग हैं इसमें इन्वॉल्व, क्योंकि हमारे काफ़ी बच्चे लोग हैं ईटानगर में ही सड़क में हम लोग रात को दिखाई देते हैं, कहीं कोई बिल्डिंग का ऊपर.
तो आपको कैसा लगता है कि ये मेजर हो सकता है और नहीं हो सकता है बोलकर? नहीं, बिल्कुल हो सकता है, ऐसा मैं ये नहीं कह रहा कि और नहीं हो सकता है, लेकिन ये सबसे मेजर इसलिए है इन द रीसेंट पास्ट, और जो आजकल का डेमोग्राफी है, ये वन ऑफ द बिगेस्ट सीजर इसलिए क्योंकि जब हमने इसे इंटरोगेट किया है, हमें पहले भी इंटेल था कि इसके ऊपर काफ़ी सामान मिल सकता है और ये काफ़ी पैसा भी रखता है जो प्रोसीड्स ऑफ क्राइम है, लेकिन जब इसे इंटरोगेट किया तो आप ये मानेंगे नहीं कि आज 269 ग्राम्स ऑफ हेरोइन ये है। आज इसका एक वाइल, जो आप छोटा सा वाइल देख रहे हैं, दैट इज़ 0.2 ग्राम्स। 0.2 ग्राम्स की आज की कीमत 4,000 रुपये है। एक छोटे वाइल की कीमत 4,000 रुपये है। लास्ट ईयर लॉकडाउन में इसकी कीमत 35,000 रुपये थी। तो आप ये देख सकते हैं कि जो भी कमर्शियल क्वांटिटी अपने पास रखता है, वो बहुत ही कम सीजर कमर्शियल क्वांटिटी के होते हैं, लेकिन जो भी कमर्शियल क्वांटिटी अपने पास रखता है वो डेफिनेटली एक बहुत बड़ा प्लेयर है कॉन्ट्राबैंड के बिजनेस में। सर, ईटानगर नाहरलगुन पुलिस स्टेशन में भी काफ़ी ड्रग्स का केसेस पेंडिंग पड़ा हुआ है, क्या उसको भी आप लोग टेक ओवर करेंगे? ऐसा अभी कोई इमीडिएट प्लान तो नहीं है, लेकिन इस केस के चलते हुए जितने भी लिंक्स हमें मिल पाएंगे, अगर उनका लिंक नाहरलगुन ईटानगर के केस के साथ मिलता है तो हम डेफिनेटली वी विल ट्राई आवर बेस्ट टू क्रैक दोज ओपन आल्सो। Sir, as you have integrated the kingpin Jiten Biswas, have you traced the main source from where he is getting all this? जी, हमारे पास कुछ इन्फॉर्मेशन है। कोई एक सोर्स है नहीं जितिन का, क्योंकि एक सोर्स से इतना सारा सामान उठाया जा नहीं सकता है, तो ही हैज़ डिफरेंट सोर्सेज एंड अभी इन्वेस्टिगेशन चल रहा है। वी विल डेफिनेटली